Good morning, students. So today we are going to discuss the NCERT questions. Let us start with the back exercise, page 128. First question: an object experiences a net zero unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity if he has stated the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity? If no, provide a reason. कहता कि an object experiences a net zero unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with non-zero velocity? The answer is yes. किस केस में ऐसा हो सकता है? When the body is moving with a uniform velocity. When the body is moving with uniform velocity. तो क्या होगा? देखो, आपको पता है F इजिकल टू क्या होता है बेटे, m में, और एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी. और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो v और u इक्वल हो जाएंगे. जब v और u इक्वल होंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो. तो F इजिकल टू क्या होता है बेटे, m में, और a क्या है, जीरो. तो फोर्स भी क्या आ जाएगी, जीरो. यहाँ पे फोर्स क्या आ रही है, जीरो, बट स्टिल द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट मींस के बॉडी मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग एंड द नेट अनबैलेंस फोर्स इज जीरो. तो वो यही कह रहा था कि अगर फोर्स नहीं लग रही है, नेट फोर्स जो है वो जीरो है, तो क्या बॉडी मूव कर सकती है? द आंसर इज यस, बॉडी कैन मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. Second question: when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. This question has already been explained. फिर से दोबारा से कर देता हूँ. When the carpet is beaten with a stick, both carpet and stick, carpet is at rest before beating, and when the stick start beating the carpet comes in motion. But the dust particle try to remain at rest due to inertia of rest, and therefore the dust particle, where the stick hits the carpet, the dust particle comes out of the carpet and no longer a part of the carpet now, so they falls down because of the action of gravity. So this is how the dust particle comes out of the carpet. Next question: why is it advisable to tie any luggage kept on the roof of the bus? ये भी हम डिस्कस कर चुका है. This is again based on inertia of motion. When the luggage is kept on the roof of the bus, it should be tied with a rope, otherwise it will fall down. When the driver has to apply brake suddenly in between, because the bus is in motion, the luggage was also in motion, but when the brakes are applied, the bus comes to rest, but the luggage on the roof of the bus tends to remain in motion due to inertia of motion. Therefore it falls from the bus, and that's why it is always advisable to tie the luggage when kept on the roof of the bus. The next question: a batsman hits a cricket ball which then rolls on the level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows down to a stop because there is a force on the ball opposing the motion, and that force is called force of friction. कोई भी मूविंग बॉडी पे अगर कंटिन्यूस फोर्स ना लगे, अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप रुक जाती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ कम्स द न्यूमेरिकल. यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, बीच बीच में से दूसरे क्वेश्चन भी हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिफ्थ क्वेश्चन: ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and rolls down a hill with a constant acceleration. Start from rest है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, एंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बेटे, 400 मीटर इन 20 सेकेंड. टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स. फाइंड द फोर्स इफ द मास ऑफ द ट्रक इज 7 टन्स. 1 टन में
एक टन में 1000 kg होते हैं बेटे, तो 7 टन में 7000 kg हो जाएंगे, बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ मास इज kg, सो वी हैव टू कन्वर्ट द मास इनटू kg. नाउ because now from second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, the distance traveled is this, initial velocity is 0, acceleration you have to find the acceleration and time taken is 20 seconds. So this is 400, ये 0 हो गया बेटे, हाफ इंटू ए, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये 400 से 400 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, एम में मास है 7000 kg और एक्सेलरेशन 2, तो फोर्स कितनी आ गई 14000 न्यूटन. सो यही पूछा था बेटे कितनी फोर्स लगेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर अक्रॉस द फ्रोजन लेक surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर. What is the force of friction? ये भी सेम ही है, मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी है और डिस्टेंस दिया है. फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रुक जाती है स्टोन तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. तो देखो यहाँ पे जो मास ऑफ द स्टोन है वो 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जो है वो दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो 50 मीटर है. तो यहाँ से भी पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम नहीं है हमारे पास और एक्चुअली ये इससे नहीं आएगा. v थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो v कितना है 0, u है 20, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और s जो है वो 50 मीटर है. तो ये आ जाएगा -400 और ये 100 है, तो 2 0 कट जाएंगे तो एक्सेलरेशन -4. माइनस का मतलब ये रिटार्डेशन है बेटे, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो रिटार्डेशन होता है. और एफ इज इक्वल टू एम में मास है 1 kg और एक्सेलरेशन -4, तो फोर्स कितना आ जाएगा -4 न्यूटन. फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता, -4 का मतलब इट इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. All these questions are very very important. You will definitely be asked one question from this chapter always, and always from NCERT book. A 8000, ये देखो ये क्वेश्चन है बेटे. A 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offer a friction of 5000, calculate the net accelerating force, the acceleration of the train and the acceleration of wagon 1 on wagon 2, force of wagon 1 on wagon 2. तो देखो ऐसे ही इंजन है, तो इंजन का मास 8000 kg है, इसके पीछे 5 डब्बे हैं बेटे इस तरह से, और हर एक बोगी का मास जो है वो 2000 kg है. ठीक है, ये वैगन 1 2 3 4 5. तो मास ऑफ 1 वैगन, एक वैगन का मास कितना है 2000 kg. तो टोटल वैगन्स कितने हैं 5 वैगन्स हैं बेटे. तो सबका मास कितना हो जाएगा बेटे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 kg. ठीक है, और इस पे नेट फोर्स जो है वो फोर्स कितना लगेगा, इंजन फोर्स ऑफ इंजन कितना है, इंजन ट्रेन को खींचता है ना, तो उसका फोर्स कितना है बेटे 40,000 न्यूटन. और ट्रैक जो है वो फ्रिक्शन लगाता है इंजन पे, वो 5000 न्यूटन है, और फ्रिक्शन तो हमेशा नेगेटिव होता है. तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 40,000 ट्रेन को आगे ले जा रही है और 5000 उसको पीछे खींच रहा है, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो गया 35,000 न्यूटन. और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम में होता है बेटे. मास कितना है 35,000, मास है 10,000 kg. पांचों वैगन का मास, पूरी ट्रेन का मास हो जाएगा ना 10,000 kg, और फोर्स लग रहा है 35,000 न्यूटन. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 35/10, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया. तो पहला पॉइंट था नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ये आ गई 35,000 मोशन. द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, एंड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. अब देखो इंजन पहले वैगन पे फोर्स लगाएगा, पहला वैगन दूसरे पे. तो देखो जब फर्स्ट वैगन सेकंड पे लगाएगा
तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको खींच सकता है, इट हैज़ टू अप्लाई द फोर्स ऑन ऑल द 4 वैगन्स, चारों वैगन्स पे लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो पार्ट ऑफ द ट्रेन है, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन वैगन 1 ऑन वैगन 2? अगेन फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स हमें निकालना है, मास अब जो है वो 8000 kg आएगा, एक वैगन का मास निकल जाएगा, बाकी चारों का आएगा। तो 4 वैगन का मास, टोटल मास 8000 आ गया, और एक्सेलरेशन तो उतनी रहेगी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 8000 इंटू इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 7/2 आ जाएगा, ये 4000, 4 7 are 28,000 न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to stop with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान है, मास दिया हुआ है, मास 1500 kg है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, एम में न्यूटन सेकेंड लॉ से 1500 इंटू 1.7 माइनस साइन के साथ डेसिमल हटा देंगे तो ये -2550 न्यूटन आ जाएगा। इतनी फोर्स लगाएंगे तो इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। 9th क्वेश्चन तो ओरल है, ये देखो 9th क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ मास इज m एंड वेलोसिटी इज v? यू नो दैट मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो डी ऑप्शन आ जाएगा बेटे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। 10th क्वेश्चन देखो, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move the wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the force of friction that will exert on the cabinet? देखो आप if you want to move the wooden block with a constant velocity, तो नेट जो है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। नेट फोर्स एज द फोर्स, नेट फोर्स शुड बी 0। तो जितना फोर्स वो 0 कब होगा, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना चाहिए। तो 200 माइनस 200 फोर्स अप्लाइड फोर्स था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना होना चाहिए, 200 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए बेटे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 200 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव -200 न्यूटन आ जाएगा। 2 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11, 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, दोनों का मास 1.5 kg है। द वेलोसिटी ऑफ ईच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट? दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं और दोनों की वेलोसिटी 2.5 है मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और दोनों यहाँ पे आके कोलाइड करते हैं। और कोलिजन के बाद बताना है कि दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आएगा बेटे कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो क्या होता है देखो बेटे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m इंटू वी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद इकट्ठे हो गए तो एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। लेट m बी देयर कंबाइंड मास एंड v बी देयर कंबाइंड वेलोसिटी। तो पहले मास कितना है 1.5 और वेलोसिटी 2.5 है, दूसरे का मास भी 1.5 है और वेलोसिटी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो -2.5 आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये वेलोसिटी नेगेटिव है, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, ये आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो ये तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। और अब आपको मास तो कुछ भी हो तो वेलोसिटी निकालनी है, 0/m, 0/m क्या आ जाएगा 0। तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट यानी कि जब कोलिजन के बाद दोनों
एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएंगे तो उनकी नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0. सो दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 12th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस अस back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justified this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck doesn't move. The answer is both the forces do not cancel each other because action and reaction are on two different bodies. The truck doesn't move because the force applied on the truck is not enough to move the truck, as the force of friction is more than the applied force. Therefore, the truck doesn't move in the direction of the force. If the force applied is more than the force of friction offered by the truck, then the truck will definitely move. In this case, the force applied is less than the force of friction. That's why the truck doesn't move, although action and reaction do not cancel each other. Next question, 13th question. A hockey ball of mass 200 gram is traveling at 10 meter per second, is struck by a hockey ball hockey stick so as to return along the straight original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum occurred in the motion and hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो देखो क्या है, मास ऑफ द हॉकी बॉल कितने हैं, 200 ग्राम. 200 ग्राम का मतलब 200 अपॉन 1000 केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 केजी आ जाएगा. और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटे, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. So as to return along its original path with a velocity of 5 meter. अब उसको रोका है तो उसकी जो दूसरी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटे, चेंज इन मोमेंटम इज m इंटू वी माइनस यू, या एम बी माइनस एम बी भी कह सकते थे. मास कितना है 1/5, फाइनल वेलोसिटी है -5, इनिशियल है 10, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू -15, 5 3 ज़ा 15, -3 kg मीटर पर सेकेंड, -3 kg मीटर पर सेकेंड. 14th क्वेश्चन. A bullet of mass 10 gram is traveling horizontally with a velocity of 150 meter, strikes a wooden stationary block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. तो देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो बेटे, मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम, मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज 150 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल वेलोसिटी तो क्योंकि रेस्ट पे आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी. और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये, 0 डिस्टेंस हमें निकालना है. टाइम जो है, डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड एंड द टाइम इज 0.03 सेकेंड्स. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन. तो पहले हम डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालने के लिए एक्सेलेरेशन निकालते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस AT से एक्सेलेरेशन निकालेंगे. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 150 है, एक्सेलेरेशन हमें निकालना है और टाइम है 3/100 सेकेंड्स. 0.03 को कन्वर्ट करेंगे तो 3/100 सेकेंड आ जाएगा. इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा -150, ये आएगा 3/100. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 100 ये आ जाएगा अपॉन 3, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा. तो एक्सेलेरेशन आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटॉर्डेशन है ऑफकोर्स, बुलेट बहुत स्पीड से जाती है, ऐसे बुलेट गई और ये वुडन ब्लॉक है, इस यहाँ से ऐसे बुलेट आई तो बुलेट इसमें जाके ऐसे फंस जाएगी वुडन ब्लॉक में, और ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और 0.03 में. तो अब डिस्टेंस निकालेंगे. अभी तो हमने रिटॉर्डेशन निकाला है,
तो डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरा और तीसरा में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 150 है, एक्सेलरेशन अब आप निकाल चुके हो माइनस 5000 है, और s यहाँ माइनस 225 00 इज इक्वल टू माइनस 10,000 इंटू एस। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, एस इज इक्वल टू 225/100, तो ऐसा आ जाएगा 2.25 मीटर्स। सो ये डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन है। और फोर्स भी निकालना है, एफ इज इक्वल टू एम है, तो मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी आ जाएगा, और एक्सेलरेशन 5000 है, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 50 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द वुडन ब्लॉक। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। बुलेट जो वुडन ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स बुलेट भी वुडन ग्राम पे लगाएगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव आया। नेगेटिव मीन्स इट्स a force of friction. So that's all for today. We'll discuss the rest of the question in the next lesson.